is Eclipse interface or Eclipse IDE, and in that Eclipse IDE we have created this particular dynamic web project. And how to create a dynamic web project I have told you previously. So you can go to a file, then you can go to new, and then within that particular part you can go to dynamic web project. So once you click on a dynamic web project, you have to give a name for that. We have given a name as welcome first. You can give any name. It is up to you. So it is nothing but a Java project. But basically it is a dynamic web project. So it consists of different components. It can have a HTML, it can have a it can have a Java servlet, it can have a JSP also. Then there is a hierarchy that is called as a folder hierarchy. So within this particular dynamic web project, we are having six different projects, six different folders. One is called as a deployment descriptor. So this is very essential to run our dynamic web project. Any web application will require this deployment descriptor. It is identified by using a file name called as a web.xml. Okay. Next part is that web services, then Java resources, reference libraries, build, and web content. Out of these six folders, some folders are very important for programming point of view. Okay, one is a Java resources. Right. So within that Java resources, we are having SRC and library. Two subfolders are there. Within this SRC subfolder, we are creating our Java servlets. Java servlets always present. It is a Java class, and it will always present in the SRC. Remember this particular. Then there is a one more subfolder that is library. But I already told you, can execute any Java program unless only when you are having a JVM, that is Java Virtual Machine. If you are having a JVM, that is JRE, okay, on top of that you can have Eclipse ID. So for a Eclipse ID, we require a Java Virtual Machine or a JRE. So that library should be present. Okay, when you're creating this particular dynamic web project, it is automatically incorporated. अपने आप उसके साथ चला आता है कि जब तक हम JVM और JRE जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम Eclipse IDE को इंस्टॉल ही नहीं कर पाते। आपको एरर आएगी Eclipse IDE इंस्टॉल कर क्योंकि आपके पास JDK और JVM अवेलेबल है। जिस दिन आपके पास JDK JVM अवेलेबल होगा उस दिन आप इंस्टॉल करने आ सकते हैं। ये केवल Eclipse के लिए नहीं है, same is applicable for the database, same is applicable for any other IDE. We have discussed this now, discussed this particular thing number of times in the basic Java programming sessions. ठीक है, आपके पास वो जो लाइब्रेरी है JRE की क्या है, इनबिल्ट है, कंपलसरी है, जो आपके पास रहनी चाहिए। जब जब आप Eclipse के अंदर डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाते हो और जावा प्रोजेक्ट बना, केवल डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट नहीं, आप नॉर्मल जावा एप्लीकेशन भी बना सकते हो, कंसोल एप्लीकेशन, तो उस समय भी आपके साथ वो लाइब्रेरी चली आती है। लाइब्रेरी कहाँ प्रेजेंट होती है? जावा रिसोर्सेज के अंदर सब फोल्डर है लाइब्रेरीज, उसके अंदर JRE सिस्टम लाइब्रेरी प्रेजेंट। इसके साथ यदि आपको और कोई लाइब्रेरी की जरूरत होगी तो उसे लाना पड़ेगा, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये सब फोल्डर की हायरार्की क्लियर है। उसके बाद क्या है, रेफरेंस लाइब्रेरी ये छोड़ दो, अभी ये काम का नहीं है, बाद में देखेंगे। बिल्ड, उसके बाद वेब कंटेंट। विदिन दिस वेब कंटेंट वी आर हैविंग HTML एंड JSP फाइल्स। HTML JSP फाइल कहाँ रहती है? वेब कंटेंट के अंदर। वेब कंटेंट के अंदर और एक दो सब फोल्डर है, मेटा INF एंड वेब। यदि आप वेब INF को यदि एक्सप्लोर करोगे, डबल क्लिक करोगे तो एक्सप्लोर होगा, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? web.xml फाइल के अंदर आपको web.xml फाइल, ठीक है। तो web.xml फाइल में मिलेगा, तो ये web.xml फाइल के अंदर हमारा क्या होता है? सोर्स कोड रहता है। दो पार्ट रहते हैं, एक होता है डिजाइन, दूसरा होता है सोर्स। मैंने लास्ट सेशन में बताया था। तो डिजाइन हमारे लिए जरूरी नहीं है ऐसा, तो जावा प्रोग्रामर यू शुड नो अबाउट द सोर्स। ठीक है, तो सोर्स कोड के अंदर ये किस तरीके से स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं और इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में देखा था। वेलकम फाइल लिस्ट का मतलब क्या है, वेलकम फाइल में क्या क्या रखते हैं। okay, so all these things we have covered in the last session. So if you have not attended that online session, you can go back to the YouTube channel and you can visit that session first and then you can come here. Okay, तो बाद में ये सेशन देखें। तो ये
index.html फाइल बनाया हुआ है पहले, जहाँ पर हमने क्या किया है, जहाँ पर हमने एक फॉर्म लिया है। ये फॉर्म टैग है। अलग अलग टैग रहते हैं HTML के, जिन्होंने HTML नहीं पढ़ा है उनके लिए ये काम आएगा। सो दिस इज HTML टैग, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे हम करली ब्रेसेस से स्टार्ट एंड एंड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे हम जब टैग की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, टैग से स्टार्ट करते हैं, टैग से एंड करते हैं। तो HTML पेजेस को क्या बोला जाता है, HTML लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हेड टैग है, जैसे हेड को स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं। बाद में हमारे पास टाइटल है, जिसे हम स्टार्ट करते हैं एंड। ठीक है, तो टाइटल के अंदर हमने नाम लिखा है जीपी मालूम, यू कैन गिव एनी नेम इन ए टाइटल। उसके बाद बॉडी पार्ट है, जिसके अंदर आपने एक मैसेज लिखा है, वेलकम टू HTML, यू कैन गिव एनी मैसेज। और उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर हमने एक्शन लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्म एक्शन का मतलब क्या है, जब हम फॉर्म के अंदर जो एक बटन बनाया हुआ है, इनपुट टाइप क्या है, सबमिट। तो ये सबमिट नाम का एक सबमिट ये बटन है हमारा, जिसकी वैल्यू क्या है, क्लिक टू लॉगिन। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू लॉगिन नाम के बटन पे क्लिक करेंगे, तो उस समय हम कहाँ जाएंगे, हम हेलो सर्वलेट नाम के जावा सर्वलेट के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने फॉर्म का एक्शन लिखा है हेलो सर्वलेट। ये फॉर्म का एक्शन क्या लिखा है, हेलो सर्वलेट लिखा है। हेलो सर्वलेट क्या है, हेलो सर्वलेट इज अ जावा क्लास क्रिएटेड इनसाइड SRC। SRC के अंदर डिफॉल्ट पैकेज बनाया हुआ है, उसके अंदर हमारा हेलो सर्वलेट क्लास है, और हेलो सर्वलेट डॉट जावा। कैसे बनाएंगे इसे, सोर्स पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद न्यू बोलेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वलेट पर जाएंगे। जैसे आप सर्वलेट पर जाओगे, वैसे आपको नाम पूछा जाएगा, पैकेज का नाम पूछा जाएगा और क्लास का नाम पूछा जाएगा। पैकेज का नाम देना मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, इफ यू वांट यू कैन गिव इट। यदि आपने नाम नहीं दिया तो डिफॉल्ट पैकेज में चला जाएगा। तो इस समय मैंने नाम नहीं दिया था, इसके लिए डिफॉल्ट पैकेज में चला गया। But it is a best practice is that try to use try to try to group your classes into the package। पैकेज के अंदर क्लासेस को रखो, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। हमने जावा के जो फीचर्स पढ़े थे उस समय ये भी पढ़ा था। तो ये जावा सर्वलेट यदि होगा तो भी ये क्लास है, जावा क्लास है, उसे पैकेज में रखना, ग्रुप करके रखना बहुत अच्छा है। लेकिन ये वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन है, इसके लिए मैंने क्या किया है, डिफॉल्ट पैकेज में उस क्लास को बनाया। बाद में मैंने क्लास का नाम दिया है, क्लास का नाम हेलो सर्वलेट। You can, if you want, you can give any other name also. First servlet, second servlet, and so. It's up to your demo servlet. Okay. जो आप क्लास का नाम दोगे, उस उस नाम का सर्वलेट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। यहाँ पर ये सर्वलेट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। ये कोड अपने आप बनता है आईडी के अंदर, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाद में ये कोड को भी हम समझ के लेंगे। इस कोड का कुछ पार्ट हमने पहले भी समझा है और डिटेल में समझ में लेंगे। फॉर द टाइम बिंग याद रखो ये क्या है, जावा सर्वलेट है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये HTML पेज में जो भी हमारा बटन है उसे क्लिक करने के बाद, बटन पर क्लिक करने के बाद हम क्या जाएंगे, सर्वलेट के पास जाएंगे, रीडायरेक्शन करेंगे। हमने कभी देखा था पेज रीडायरेक्शन। पेज रीडायरेक्शन मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जाना। HTML पेज है, HTML पेज से जावा सर्वलेट के पास चले जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ रीडायरेक्शन। और इसे सर्वलेट चेनिंग भी बोलते हैं, एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पर जाना, उसे सर्वलेट चेनिंग। यहाँ पर हम सर्वलेट से सर्वलेट पर नहीं जा रहे हैं, हम HTML से सर्वलेट पर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक्शन में क्या लिखा है यहाँ पर, हेलो सर्वलेट। अब याद रखो कि हमें क्या करना है, कि क्लास का नाम लिखना है। हमें डॉट जावा एक्सटेंशन नहीं देना है, हमें केवल क्लास का नाम लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो खुद अपने आप आइडेंटिफाई करेगा कि हेलो सर्वलेट कहाँ प्रेजेंट है, SRC पैकेज में प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज इन द डिफॉल्ट पैकेज। यदि है कोई पैकेज में प्रेजेंट होता, नया पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर यदि प्रेजेंट होता तो पैकेज का नाम पहले आता, बाद में क्लास का नाम। ये चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम पैकेज के अंदर उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग याद रखो हमने डिफॉल्ट पैकेज में क्रिएट किया है, और डिफॉल्ट पैकेज में क्रिएट करने के बाद हमने क्लास का नाम डायरेक्टली यूज किया विदाउट यूजिंग अ डॉट जावा एक्सटेंशन। Right? I will run this particular code first,